Hello students, in this lecture we will discuss about thermodynamics. So this is Dr. Dinesh Kumar Kohli from Mechanical Engineering Department, SART Bhopal, and just we are having a brief discussion, and this is the part of a subject of first year which is basic mechanical engineering. So thermodynamic system, and before going to understand what are thermodynamic systems, we have to understand what is thermodynamics. Thermodynamics is a branch of science which deals with energy interaction. It means when the energy is transferred or transformed from one form to another form, it is studied in thermodynamics. As we know that there are different devices which are working on the basis of energy interaction. Suppose a fan is running, then a fan is taking electrical energy as the input, but this electrical energy is being converted into the mechanical energy by its rotation. So actually this is the energy transformation. We are transferring heat from one system to another. This is the energy transfer. So thermodynamic system deals with the energy interaction, maybe energy transfer or maybe energy transformation from system to surrounding or from within the system. Now before going to understanding this thermodynamics deals with 3 E's. What are the 3 E's here? First is energy. Energy is the very important term of thermodynamics. If you are not going to understand energy, you cannot study thermodynamics, because energy is involved in each and every process. We take food, without food we cannot work. We use motorbike, it takes the fuel energy, this is utilized to run the vehicle. Similarly, if we are running on the bicycle, we do paddling, हम पैडलिंग करते हैं तो हमें वहाँ एनर्जी देना पड़ती है. सो इन ईच एंड एवरी thermodynamic process there is involvement of the energy. So first part is energy, that may be energy is being taken or energy is being given. Second part which is important in thermodynamics is the equilibrium. Equilibrium means the system should be in equilibrium. It means there should be uniformity of some value or some characteristics. For example, I am here in this classroom and we are knowing the temperature of this room. Suppose it is 25 degrees centigrade. Then equilibrium indicates that this temperature should be uniform throughout the room and it should not change. If it is not being changed, it is called as the equilibrium, because here we are talking about the temperature. So this is called as the thermal equilibrium. There may also be in the equilibrium, सपोज हम मानते हैं कि हमारे रूम में एक प्रेशर होगा, विच इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 1 atm है और सारे रूम में एक सा है, तो उसे हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है. सो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मे बी थर्मल इक्विलिब्रियम, मे बी इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम, मे बी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. बिकॉज अगर हमें इस रूम का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, तो जब तक रूम में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा या स्थिर नहीं होगा, उसको हम मेजर कर ही नहीं सकते हैं. हमें रूम का प्रेशर मेजर करना है तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि इस रूम का प्रेशर एक सा रहे, ये बदले नहीं. अगर प्रेशर बदलेगा तो उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे. सो इट नीड्स द इक्विलिब्रियम ऑल्सो. सो दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर रिक्वायर्ड इन थर्मोडायनामिक्स. थर्ड टर्म comes into relation or comes into knowledge, which is called the entropy. In each and every process entropy changes. So what is entropy actually? Entropy, it indicates about the degradation of the energy. When some energy transfer or transformation occurs, it changes entropy. And entropy we can say in अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, इसका मतलब होता है कि कितना रेंडमनेस बढ़ गया है. फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं कि एक ट्रेन है, ट्रेन में पैसेंजर पास हो रहे हैं, पैसेंजर बैठे हुए हैं, या क्लास में स्टूडेंट हैं बैठे हुए हैं, तो वो एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज्ड हैं. जब क्लास छूटती है, क्लास छूटने के बाद सारे स्टूडेंट क्लास से बाहर चले जाते हैं,
और वो रैंडम ऑर्डर में मूव करने लगते हैं, या ट्रेन से निकलने के बाद जो यात्री हैं, पैसेंजर हैं, वो प्लेटफॉर्म पर यहाँ से वहाँ मूव करने लगते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो पहले अरेंज थे, सिस्टमेटिक थे, अब वो क्या हो गए, वो डिसऑर्डर में आ गए हैं। तो डिसऑर्डर में आना ये बताता है कि उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी इज़ इंक्रीजिंग, वेरी सिंपल। So this term is also important because it is studied and it indicates how the process can be occurred, या उस प्रोसेस की feasibility है या नहीं है, इसको हम स्टडी करेंगे एंट्रोपी, दिस टर्म। सो दिस थ्री इज विच आर एनर्जी, इक्विलिब्रियम एंड एंट्रोपी आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इन थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द thermodynamic system. So in thermodynamics there are three types of systems. First is called like the closed system. Before going to understand the closed system, open system or isolated system, we have to understand what is a system actually. So a system is a prescribed region of space or a finite quantity of matter which is used to analyze the energy interaction. For example, suppose we are saying this is the system, suppose this is system, then this circular portion is called as boundary, and outside this boundary there is surrounding. So what will happen, the energy interaction will occur between system and surrounding, means energy go from system to surrounding, or energy may come from surrounding to system, that is E2. So there is interaction between system and surrounding, and definitely when this interaction will occur, it will occur across the boundary of the system. जब भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में, ये उसकी बाउंड्री के थ्रू ही होगा। आइदर सिस्टम कैन टेक एनर्जी और कैन गिव एनर्जी। अगर इसका एग्जाम्पल लें, सपोज हमारे पास एक पानी का बॉटल है, वाटर बॉटल है, तो वाटर बॉटल में क्या वाटर है, अगर हम बॉटल को एक रूम में छोड़ देते हैं और गर्मी का टाइम है जहाँ पर टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुँच जाता है, उस केस में क्या होगा, बॉटल का पानी कुछ टाइम बाद गर्म हो जाता है। व्हाट हैपेंड देयर, जो बॉटल के अंदर पानी था उसको क्या हुआ, बाहर से गर्मी मिली, हीट मिली और पानी गर्म हो गया। तो जो बॉटल है और बॉटल की जो बाउंड्री है, उसका सरफेस है, वो उसकी बाउंड्री हो गई है। अब बाउंड्री के थ्रू क्या हो रहा है, एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है। तो हम ये बोलेंगे कि इसके अंदर जो कंटेंट था इंक्लूडिंग बाउंड्री, वो हमारा सिस्टम है। कंप्लीट बॉटल इट इज़ ए सिस्टम, एंड आउटसाइड दिस देयर इज़ द बाउंड्री, मीन्स एटमॉस्फेरिक एयर इज़ द बाउंड्री। सो दिस इज़ द बॉटल, बॉटल इज़ हैविंग सम वाटर इन इट, so including this surface, this is the system, and outside this surface जो आपको एटमॉस्फेरिक एयर दिख रही है, वो एयर क्या है, हमारा सराउंडिंग है। गर्मी के टाइम इसको वैसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद बॉटल का पानी और बॉटल गर्म हो जाएगी। तो गर्म हो रही क्या हो रही है, बाहर से जो हमारे पास जो सराउंडिंग है वो इसको एनर्जी दे रहा है, हीट दे रहा है, हीट के कारण ये गर्म हो रही है। तो गर्म होना क्या है, ये हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र है, एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो रही है। हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी बॉटल ये बंद है। इस केस में वी कैन टेक मैनी एग्जाम्पल। हम इस क्लासरूम को भी हम मान सकते हैं कि ये भी हमारा सिस्टम है। क्लासरूम की सारी विंडोज़ मान लीजिए क्लोज्ड है, तो क्या होगा, बाहर से गर्मी क्लासरूम में आएगी। अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर टेम्परेचर कम है। सो दैट इज ऑल्सो द सिस्टम। सो यू कैन टेक मैनी एग्जाम्पल। देयर बी एग्जाम्पल ऑफ ए सिलेंडर एंड पिस्टन। सिलेंडर पिस्टन के बीच में स्पेस है, और वहाँ भी सपोज दिस इज ए सिलेंडर एंड द पिस्टन इज देयर, दिस इज द पिस्टन। So this space can be considered as a system. Now this piston here can reciprocate, can move. So this will reciprocate, this will move. So there will be some energy interaction. We can give heat to this portion. We can heat here. जब इसको हम हीट देंगे तो हीट की देने से क्या होगा, अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई गैस है तो गैस को क्या एनर्जी मिलेगी, एक्सपांड होगी और पिस्टन को पुश करेगी। तो इसमें जो एनर्जी डेवलप होगी वो पिस्टन को पुश करेगी, और पिस्टन को हमने कनेक्ट कर दिया कनेक्टिंग रॉड से। हियर इट इज कनेक्टिंग रॉड एंड ए क्रैंक विल देयर, सो इट विल रोटेट। सो इन दिस वे वी आर ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज सिस्टम इन विच ओनली देयर इज एनर्जी ट्रांसफर।
Now second is the open system. Open system is the system in which there will be energy as well as mass transfer. The majority of mechanical devices are based on this open system. For example, हमारा कंडेंसर है, पंप है, कंप्रेसर, नोजल, डिफ्यूजर, आईसी इंजन, इवन टरबाइंस, इन सभी में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र तो होती है, साथ में क्या मास का ट्रांसफ़र भी हो रहा है। अगर दोनों का ही ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी और मास, तो इसे हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। सभी ने देखा होगा, सभी के लिए ज़रूरत पड़ती है, आपकी बाइक में हवा की ज़रूरत पड़ती है, और आप जाते हैं दुकानदार के पास, तो क्या करता है, उसके पास एक कंप्रेसर होता है, और कंप्रेसर आपके व्हीकल के ट्यूब में एयर फिल कर देता है। तो वहाँ कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर को रन करने के लिए हम उसको इलेक्ट्रिक इनपुट देते हैं। वो इलेक्ट्रिक इनपुट क्या है, दैट इज़ द एनर्जी, और वो एनर्जी रन करके जब कंप्रेसर रन करता है तो उस एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दैट एनर्जी क्या करती है, वो एयर को कंप्रेस करेगी, उसका प्रेशर बढ़ाएगी, और उस एयर को हम क्या करते हैं, ट्यूब में फिल कर देते हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, वहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी का हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बिकॉज हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, एयर का हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो एनर्जी ट्रांसफ़र है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, वहाँ पर हम जो कि कंप्रेसर है, कंप्रेसर एयर को ले भी रहा है और एयर को सप्लाई भी कर रहा है, तो मास का भी वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र एज वेल एज मास ट्रांसफ़र। इफ़ दिस इज़ हैपनिंग, इट इज़ कॉल्ड द ओपन सिस्टम। तो ये आपका टरबाइन है, आईसी इंजन है, डिफ्यूज़र है, नोजल है, कंडेंसर है, एवापोरेटर, पंप्स आपके हैं। पंप भी क्या करते हैं, आपने देखा होगा सभी घर में पंप यूज़ करते हैं पानी के लिए। पानी को मान लो हमें टॉप लेवल पे लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं, पंप यूज़ करते हैं। उस पंप में क्या है, इलेक्ट्रिक इनपुट देते हैं, पंप में अंदर एक इम्पेलर लगा होता है, वो पानी को ऊपर भेजता है। तो जो पानी का जो फ्लो हो रहा है, इन और आउट हो रहा है, वो क्या है, वो मास ट्रांसफ़र है। और जो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल में रोटेशन करने के लिए, इम्पेलर के लिए, वो हमारा क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र है। सिर्फ द एनर्जी एंड मास बोथ आर बीइंग ट्रांसफर्ड इन ए सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड द open system. Most of the devices are based on open system in the mechanical engineering. Now third one is called as the isolated system. इसका नाम ही बताता है, ये isolated है, मीन्स अलग है, सेपरेट है। Neither energy nor mass transfer, ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं होगी और मास भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। जब सिस्टम हमारा आइसोलेटेड रहेगा तो कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो उस केस में इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसका जो एनर्जी लेवल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, दैट विल नॉट चेंज एट ऑल। आपका इसके बहुत अच्छा एग्जांपल है थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क हम क्या यूज़ करते हैं, मान लो हमें चाय रखना है या टी रखना है कुछ टाइम के लिए, तो टी को हम उसे रख देते हैं, और आप देखते हैं करीब 7 या 8 घंटे तक चाय का टेम्परेचर ज़्यादा बदलता नहीं है, उतना ही रहता है अप्रोक्सीमेटली। सो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, उसमें क्या रहता है कि डबल बॉल्स होती हैं, डबल बॉल्स के बीच में क्या होता है, एयर फील्ड होती है। एयर क्या करती है, जो अंदर जो भी कंटेंट है, मे बी टी, मे बी सम हॉट मिल्क एट्सेट्रा, वो उस हीट को बाहर नहीं जाने देगी। मतलब जो बाउंड्रीज़ हैं, वो बाउंड्री क्या करते हैं, उस सिस्टम को आइसोलेट कर दिया, वो हीट को या एनर्जी को बाहर ही नहीं जाने देंगे, आइसोलेट कर दिया, तो ना तो मास का ट्रांसफ़र हो रहा है और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें कंटेंट उतना ही है। तो ये कहलाता हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें एनर्जी और मास दोनों के ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो है आपका इग्लू। अगर आपने सुना है नाम, इग्लू क्या होता है, जैसे अंटार्कटिका वगैरह नाम सुना होगा, जहाँ पर बहुत ठंडा प्लेस रहता है, तो वहाँ पर क्या डबल बॉल वाले हाउस बनाए जाते हैं। उस हाउस में क्या रहता है, डबल बॉल रहती है, वहाँ में एयर रहती है, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि डबल बॉल होने के कारण जो अंदर एयर रहेगी, वो एयर हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देगी और वहाँ पर अंदर ठंडी नहीं आएगी। वो भी किसका एग्जाम्पल है, आइसोलेटेड सिस्टम का। So in this way we can say there are 3 systems: closed system, open system and isolated system. All the remaining properties, processes are based on these systems. So we will discuss further about other property process in the next lecture. Thank you.